रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। औत्सुक्य, मोह, अरति, इनके उत्पत्ति में जो कारणीभूत है, ऐसे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका जिन्होंने नाश किया है, ऐसे अपूर्व वैद्यों को मेरा अंतःकरण से नमन है। अब यहाँ पर अपूर्व वैद्य को कहा गया है, मतलब ऐसे फिक्टिशियस वैद्य को इमेजिन किया है कि ऐसा वैद्य न भूतो न भविष्यति हुआ है, ऐसे क्वालिटीज से उस वैद्य को संपृक्त किया हुआ है, ऐसे वैद्य की यहाँ पर कल्पना की गई है। लगभग ऐसे ही कंसेप्ट हमारी डिवाइन वैद्य की है कि इट इज जस्ट एन आइडियल वैद्य, एन आइडियल डॉक्टर, हाउ ही शुड बी। It is absolutely impossible to become 100% totally divine, right? It is basically a journey. Divinity is a journey towards becoming the best version of yourself, a journey towards becoming the best Vaidya, a journey towards becoming the best Vaidya you can ever become, right? So, this is what it is all about. Now, the most important thing today we are going to discuss is about Parayan. Parayan is one of the compulsory tasks in Divine Vaidyatva. You have to do it, there is no excuse for it. Why Parayan is important, first of all? See, Sushrut in Sutrasthan 4th Adhyay says that वाक्सौष्ठवे अर्थविज्ञाने प्रागल्भे कर्मणैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च यति तद्धायन अंतगाः. What is telling that Vaksauštave, the one who knows how to speak, how to recite, the one who knows the meaning, Artha Vijnane, whatever he is reading the meaning of it, Pragalbhe, because of these things he has developed a kind of buddhi. He is able to get cross references in the text and understand the subjects in a more better way. Karma Naipune, and he's doing karma abhyas. He's practicing what he's preaching. Tad abhyasecha. He's doing those things continuously again and again. Then what will happen? Siddhaucha. He will get siddhi, that is success in his endeavor. Right? So if we go with this path, Vak Saushtave, Artha Vigyane, Pragalbhe, Karma Naipune, Abhyas. These five things, if we follow in our life in relation to Samhitas, then there is sure short siddhi, sure short success. And Parayan is one of the methods of getting through the Vak Saushtave Artha Vigyane method. What is Parayan basically? First, let us go into this. Parayan is nothing but recitation of the shlokas of the entire Sahita of your like. Okay, so you have to recite the shlokas, but the shlokas have to be recited with nirvikalpa buddhi. Now, what does that mean? While reciting the shlokas, you should recite them as they are. Your buddhi shouldn't come in between. You should not impart meaning to what you are reading. You should grasp exactly what Charak is trying to say. What happens most of the time is that we read what we want to read, right? We don't read what he wants us to read. We don't read his mind. We read basically what is internally inside us. जो हमने सीखा है उस बेसिस पर हम पढ़ते हैं, अर्थ लगाते हैं. हम वो अर्थ नहीं समझते, लगाते, जान पाते जो चरक हमें कहना चाहते हैं. तो एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रीड विथ, रिसाइट विथ निर्विकल्प बुद्धि. उस श्लोक को 100% आपको देना है, आपका तन मन उसमें लगा देना है और उसका अर्थ भी आपका बोध नहीं हो, ये आपको करना है. एक 4-5 अध्याय आपको इसमें लगेंगे, लेकिन विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस, विथ अभ्यास यू कैन डू दिस क्वाइट ईजिली. Even if you can do this thing to 50%, try that. Don't get the meaning of it.
Even students can do this thing quite easily because they don't know only many shlokas. So it is very helpful for them. It is in fact a bonus for you that you don't know the shloka and their meanings, so that your brain will not come in between. You know, friends, our biggest enemy are our thoughts. Overthinking is our thoughts. Overthinking is our biggest enemy. If we have controlled thoughts, a crystal mind, if we can use our brain with our will, if we want to stop our thought activity, we can stop it. If we can want to start, we can start it. Just type this type of start and stop switch. If it is there in our body, if we have developed that habit, then there is nothing like it. So this is what we all have to do now. Now you have understood that we have to read with nirvikalpa buddhi. Whatever it is, we are going to read with nirvikalpa buddhi. And what will happen because of that? That is most important. What, suppose you recite the entire Sushruta Sahita in 4 adhyayas daily. This is what our sequences used to be going to be, and we are going to recite Sushruta Sahita only compulsory. Okay, no Charak Samhita, no Vagbhat Samhita, Sushrut Sahita common for all of us, because we will be bonded because of that Sushrut Sahita together. Our man is one. We are connected together with man, and if we do Parayan of Sushrut Sahita, then through that common man, we all will get a common thing, that is divinity in us. It will We will develop integrity and divinity in our thoughts. A different kind of bond we will develop. Hence, I am telling that it should be Sushrut Sahita. Secondly, the basis of starting this divinity, divine Vaidhyatva, is the reference of Sushrut Sahita Sutrasthan 25th Adhyay, in which he says, Mataram Pitaram Putran Bandwan Apicha Aturam Abhiyetani Abhishankit Vaidye Vishwasameti Cha. Okay, Tasmad Putravad Eve Enam Palaye Dhaturam Bishak. Who is a true Vaidya? The one who treats his patient like his son, the one who is so compassionate towards his patient, the one who gives his 100% to his patients, that person is Vaidya. He is not a businessman like we have become today. कि पैसा दो, पेशेंट से पैसा लो, उसको सर्विस दो, बात खत्म. This is not some Vaidyatva. Vaidyatva is some different thing. I have told you earlier also that kurvate ye tu vrittyartham chikitsa panya vikrayam te hitva कांचनम राशि पाउंशु राशि मुपासते. सोने जैसा हमारा आयुर्वेद है. इट इज़ जस्ट लाइक प्योर गोल्ड. 22 कैरेट खरा सोना है. और ऐसा सोना आपके पास है. हर दिन आप उसको देख सकते हैं, निहार सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, पहन सकते हैं. ये होने के बावजूद हम देख क्या रहे हैं? उसमें से मिट्टी देख रहे हैं, खराब चीज़ें उसमें से देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें उसमें देख रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है. सिर्फ उसका धंधा बनाया है. औषधों को बेच रहे हैं, स्वास्थ्य को बेच रहे हैं. लेकिन जनस्य आशय आलक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैव अनुवर्तेत पराराधन पंडिता. पेशेंट के मन में क्या चल रहा है, उसका मन कितना दुखी है, कितना कष्टी है, क्यों उसे ये बीमारी हुई है, उसकी जड़ तक जाने की हम कोशिश ही नहीं कर रहे. उसका सही अर्थ में हम फैमिली डॉक्टर बन ही नहीं रहे. यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कम सिर्फ 10%, 20%, मैक्सिमम 30% रिलीफ दोगे आपके पेशेंट को. लेकिन इमेजिन करो यदि आप उसके हर हिस्से में उसको मदद कर पाओ, हर प्रकार से उसको अपने वैद्यत्व से उसके दिल को छू पाओ, तो देयर विल बी नथिंग लाइक इट. आपको पैसे तो मिलेंगे ही, पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन by giving him health, wealth, success, happiness, this is what you are going to get in return. This is what LOA is all about. यही तो law of attraction है. Okay, so the another thing which is most important, why we are going to do Parayan of Sushrut Sahita, is the Atura Raksha Sutra given in it, which is nothing but the law of attraction in Ayurveda. The Atura Raksha Sutra, which is given in Sushrut Sutrasthan 5th Adhyay, which starts from कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यताम्. Like this, that Atur Raksha Sutra goes, in which we are talking about the different gods which are representing our body parts. For example,
अग्निम रक्षतु ते जिह्वा प्राणान वायुस्तथैव च। हमारे जिह्वा की रक्षा कौन करता है? तो अग्निदेव करते हैं। हमारे शरीर के वायु की रक्षा कौन करता है? तो प्राण करते हैं। हमारे शरीर के प्राण की रक्षा कौन करता है? तो वायु भगवान करते हैं। इस प्रकार अनेक 50 देवताओं का यहाँ पर नाम लिया गया है, उनको आह्वान दिया गया है कि आप आओ मुझे स्वस्थ बनाओ, आप आओ मेरे पेशेंट्स को स्वस्थ बनाओ। यही हमें करना है रोज़, कि हमें कम से कम 3 बार या 1 बार भी चलेगा, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। 3 बार आपको आतुर रक्षा सूत्र बोलना है। उस समय आपको अंदर ही अंदर विजुअलाइज करना है कि हम सभी के पेशेंट्स जो डिवाइन वैद्यत्व से जुड़े हुए हैं, उनको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, उनका दुख कष्ट दूर हो रहा है। आप जो भी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं उसकी सिद्धि हमें मिल रही है, ऐसा आपको सोचना है। और उसके बाद आपको पारायण को स्टार्ट करना है, और पारायण खत्म होते ही फिर से आपको आतुर रक्षा स्तोत्र 1 से 3 बार बोलना है। इसको बोलते हैं संपुट। तो अभी जो भी कुछ हम पारायण करेंगे उसको आतुर रक्षा का संपुट बनाएंगे। संपुट यानी कि दोनों हाथों को ज्वाइन कर देना। तो एक आतुर रक्षा स्तोत्र पहले, एक आतुर रक्षा स्तोत्र बाद में, इसके बीच में पारायण होगा। यानी कि आवर पेशेंट्स, आवर सेल्स आर गोइंग टू बी कवर्ड और गेट बेनिफिटेड थ्रू law of attraction, which is going to work in the medium of Atur Raksha Sutra and through the methodology of recitation, पारायण। इतना महत्व इसका है। ओके। सेकेंड थिंग इज, जब आप बोलोगे, रट्टा मारोगे, सॉरी, रिसाइट करोगे वो श्लोकों को, तो वाक सौष्ठव तो प्राप्त होगा ही, आप सच्चा उच्चारण उसका धीरे धीरे कर पाओगे। स्टूडेंट्स के लिए, इवन इफ यू डोंट नो टू रिसाइट द श्लोकास प्रॉपरली, स्टार्ट डूइंग इट विद टाइम, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिसाइट। इसमें थोड़ी गलती भी हुई तो चलेगा, देयर इज नथिंग बिग थिंग इन इट। अप्रोच योर टीचर्स, अप्रोच योर सीनियर्स, लिसन टू सम वीडियोज ऑनलाइन एंड ट्राई टू लर्न और रिसाइट इन अ प्रॉपर वे। जितना आप प्रॉपर स्पष्ट उच्चारण करोगे उतना आप उस विषय की डीप में समझ पाओगे। उच्चारण का अपना एक महत्व है। हर एक वाक्य जो है ना संहिता का, उसमें 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः एंड मंत्रवत संप्रयोक्तव्यम। कि हर एक उक्ति पर, हर एक शब्द पर परम आदर, सुपरलेटिव फेथ होना चाहिए। इसमें बताई हुई हर बात बिल्कुल सही है, 101% सही है। ये मेरी गलती है, ये मेरा कमिटमेंट की कमी है, मेरे कमिटमेंट की कमी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। ओके, आयुर्वेद में कुछ कमी नहीं है, उन ग्रंथों में कुछ कमी नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण है, डिवाइन है। यह हमारा राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ द एबिलिटी टू लर्न, लैक ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ें हमारे में हैं। इसकी वजह से रजो और तमोगुणों का आवरण हो चुका है। इसलिए हम ज्ञान को जैसा है वैसा ग्रहण नहीं कर पा रहे। बुद्धिम समम ही पश्यति, जो जैसा है उसको वैसा देख पाना, जिसे जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान कहा गया है। जो चीज़ जैसी है, जैसा चरक कह रहे हैं, जैसा सुश्रुत कह रहे हैं, वैसा का वैसा हमारा फीडिंग हो जाना निर्विकल्प बुद्धि के द्वारा, उसे ही तो ये रीडिंग करना कहते हैं, उसे ही तो सच मायने में पारायण कहते हैं। और जब आप ऐसा करोगे, यू विल फील, यू विल एक्सपीरियंस दैट चरक और सुश्रुत आपके कंधे पर आकर बैठते हैं। लिटरली यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर विथ यू ऑल द टाइम, क्योंकि आपने उससे ऐसा कनेक्शन बना लिया है, एक दोस्त बना लिया है आपने। आयुर्वेद में कहा गया है कि शब्द नित्य है, यानी कि क्या? शब्द हरदम इस ब्रह्मांड में है। जो भी चरक सुश्रुत वाग्भट ने कहा है वो हमेशा घूम रहा है। सिर्फ आपको अपने बॉडी को फाइन ट्यून करना है। आपका जो रेडियो है, जो अभी 98.9 पे चल रहा है, उसको फाइन ट्यून करके 98.3 पे लेके आना है, तो आपको शब्द सुनाई देंगे। यू विल लिटरली हियर द वॉइसेस। और ये हेलुसिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सुनाई देना, इसका क्या मतलब है कि आइडिया सूझना। जो चरक सुश्रुत वाग्भट आपसे करवाना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको थॉट्स के रूप में सुनाई देगी और आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जिससे ना ही आपका भला होगा, आपकी विद्यार्थी का भला होगा और पूरे विश्व का भला होगा। ऐसी ताकत पारायण में है। इतनी अद्भुत चीज़ पारायण है। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, एवरी वन कैन डू इट। ओनली थिंग नेसेसरी इज अभ्यास, कंटिन्यूटी ऑफ डूइंग इट।
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि हर एक शब्द जो रहता है ना, हर एक अक्षर जो रहता है वो अपने आप में डिवाइन है संस्कृत का। एक एक्सपेरिमेंट हुआ बीच में, एक साइंटिस्ट ने अलग अलग शेप्स बनाए, जो हमारी माहेश्वरी सूत्र है ना, अ ई यू न रूल रुक, तो उस शेप में, यानी कि जो संस्कृत के मूलाक्षर है उस शेप में पाइप्स लेकर, वो बड़े बड़े पाइप्स लेकर वो शेप उन्होंने बनाया और ओपन एंडेड बनाया उसको। सपोज अ बनाया है तो अ का जो एक एंड है वो ओपन है और दूसरा जो एंड है वो भी ओपन है। सपोज ई बनाया है पाइप से, तो ई का एक एंड ओपन है, दूसरा एंड भी ओपन है। और ए बी सी डी को भी उसी शेप में बनाया पाइप्स का सहारा लेकर। ए का एक एंड ओपन है, दूसरा एंड ओपन है। अब उन्होंने क्या किया कि एक ओपन एंड से हवा फूकी, राइट। वो हवा फूकने के बाद दूसरे एंड से वो हवा चली आई। दूसरे एंड से जब हवा चली आई तो जो अक्षर था वैसा आवाज बाहर निकला। अ था तो अ निकला, ऊ था तो ऊ निकला, क था तो क निकला। फैंटास्टिक इजंट इट। लेकिन ऐसा जब एबीसीडी के साथ किया तो वैसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। जैसी हवा गई वैसी की वैसी बाहर निकल गई बिना किसी आवाज के। सो जस्ट इमेजिन व्हाट दिस वर्ड्स आर। ये शब्द क्या है, कितनी पावर है इनमें। सिर्फ संस्कृत के उच्चारण मात्र से आपके जन्मों जन्म के पाप मिटते हैं। हैव यू एवर इमेजिन दैट? जी हाँ, ये होता है दोस्तों। सिर्फ संस्कृत का उच्चारण करने मात्र से, श्लोकों को उच्चारण करने से आप प्राणायाम करते हो, ये सोचा है कभी आपने? जो श्लोक हम बोलते हैं, अथातायुष काम्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः, तो जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं पूरी तरह से व्याख्यास्यामः, तो अंदर ही अंदर हम कपालभाति कर रहे होते हैं। जब हम स्पष्ट उच्चारण करते हैं तो अंदर ही अंदर हम परावाणी और वैखरी वाणी को स्टिमुलेट करते रहते हैं। हमारा मणिपुर चक्र, जो पैशन का चक्र है, वो एक्टिवेट होता है। हमारी वैखरी वाणी जो अग्नि को रिप्रेजेंट करती है वो शुद्ध होती है। तो जैसा हम सोचने लगते हैं, जो हम चाहने लगते हैं वो हम पाने लगते हैं, वो हम बोलने लगते हैं, वो लोग समझने लगते हैं। ओके। कौन सी बात कब कहा कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हम वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वाक सिद्धि की, हमारी बात बिल्कुल सामने वाले के मन में घर कर जाती है। वी स्टार्ट एग्जैक्टली स्पीकिंग व्हाट द अदर पर्सन वांट्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन व्हाट वी वांट। उसके तरीके से हमारी ही बात हम उसको पहुंचा पाते हैं। एंड दिस इज सच अ बिग थिंग, दिस कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ पारायण। Okay, so I think I have convinced you enough why Parayan should to be done. Now, how Parayan is to be done? Very important. After getting up, Brahma Murti, you are waking up. If not, at least you are getting up before sunrise. That I'm presuming. After getting up, doing certain daily course of yours, you have to sit in Kuber Mudra facing the east direction. कुबेर मुद्रा ये संकल्प की मुद्रा है। आपको जो भी चाहिए वो इस कुबेर मुद्रा से सिद्ध होता है, बशर्ते कि वो चीज़ डिवाइन हो। इट्स इज़ नॉट स्वार्थी, वो निस्वार्थ चीज़ हो। जैसे मैंने संकल्प किया है कि मुझे 3 साल में, आज से 3 साल लेकर मुझे 10,000 वैद्यों को एम्पावर करना है। उन्हें अपने निगेटिव जोन से बाहर निकाल कर आयुर्वेद का सच्चा अमृत चखाना है, ताकि वो हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस खुद को भी प्राप्त करा सके और दूसरों को भी प्राप्त करा सके। ये मेरा मिशन है। तो ये मिशन स्वार्थी है क्या? तो कुछ हद तक डेफिनेटली है, लेकिन मेजॉरिटी ये निस्वार्थ मिशन है। ठीक उसी तरह आपको भी ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि आपका मिशन क्या है आज से 3 साल को लेकर। 3 साल ही क्यों बोला है, इसके पीछे अलग रीज़न है, उसके बाद में आएंगे। लेकिन 3 साल आपको आज से 2023 में देखना है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप समाज को देना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप निरंतर करोगे तो आप एक विशिष्ट आउटकम तक पहुंचना चाहते हो, टेंजिबल मोटिवेशन। मैंने कहा था ना कल कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप एक्शन प्लान उसमें डालकर एक पर्टिकुलर आउटकम तक आना चाहते हो। तो ढूंढो वो चीज़, और उस चीज़ को आपको एक फ्रेमवर्क में डालना है, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट थिंग, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो इस प्रकार से उस वाक्य को फॉर्म करना है, जो स्पेसिफिक भी होगा, मेजरेबल भी होगा, अचीवेबल भी होगा। कोई इम्पॉसिबल टास्क आपको नहीं डाल देना है, रियलिस्टिक भी होगा, इट इज़ पॉसिबल, और टाइम बाउंड भी होना है।
ऐसे आपको चीज़ होनी चाहिए। इट शुड स्केयर यू अ लिटिल एंड एक्साइट यू अ लॉट। ओके, जैसे भी मैंने क्या किया है कि 10,000 वैद्य तक मुझे पहुंचना है। मैंने ऐसे बोला ही नहीं कि मैं 1 लाख वैद्य तक पहुंचना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। शायद मैं पहुंच भी जाऊँ, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, शायद मैं पहुंच भी सकता हूँ, लेकिन 10,000 मुझे अंदर से लगता है, माई इंट्यूशन सेज, माई इंस्टिंक्ट सेज कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ओके, मेरा माइंड क्या बोलता है कि तू हार्डली 500 या 5,000 लोगों तक ही जा पाएगा मैक्सिमम। सो मैंने उसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा लिया है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच किया है खुद को कि भले ही मेरा माइंड ऐसा बोल रहा है, लेकिन आई हैव टू पुश माई सेल्फ टू 10,000 वैद्य। सो द गोल शुड एक्साइट यू मोर एंड स्केयर यू अ लिटिल। सो ऐसा आपका मिशन होना चाहिए कि आपको उसमें एक्साइटमेंट मिलना चाहिए। यू शुड इमेजिन वॉट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। सो ऐसा आप कुछ भी वाक्य बनाओ। जैसे मेरा वाक्य बताता हूँ कि 31 दिसंबर 2020 तक शाम को 4 बजे मैंने 10,000 वैद्यों को एक बहुत ही अनूठे तरीके से आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा निर्माण कर आयु हेल्थ वेल्थ सक्सेस हैप्पीनेस के डोरवेज उनके लाइफ में ओपन किए हैं। और इनका फीडबैक्स मुझे वैद्यों से मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूँ। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको आपका ऐसा कोई भी संकल्प लेना है, 11 बार उसको मन ही मन में मंत्र की तरह जपना है, रटना है, और उसके बाद आपको पारायण को शुरुआत करनी है। ओके, सो ईस्ट पूर्व दिशा में आप बैठे हो, कुबेर मुद्रा में आप बैठे हो, सीधा बैठे हो, एकदम स्ट्रेट बैठे हो। फिर आपने ये संकल्प जो है स्पेसिफिक शब्दों में आपने बनाया है, अंदर ही अंदर आप उसको रट रहे हो, और उसके बाद आप पारायण को शुरुआत करते हैं। तो पारायण आपको सुश्रुत संहिता का ही करना है। एग्जाम्पल बताता हूँ। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थानम अथा तो प्रथमोध्याय अथा तो वेदोत्पत्तिम अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरि अथा खलु भगवंतरम। इस प्रकार उसकी शुरुआत होती है। ऐसा आपको पूरा एंड तक चले जाना है। सिर्फ श्लोक पढ़ना है, उसका मीनिंग पढ़ना नहीं है, टीका पढ़नी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसका अर्थ जो है वो आपको लगाना नहीं है। निर्विकल्प बुद्धि से जैसा सुश्रुत चाहते हैं बताना, वो लेने की कोशिश करना है। और लास्ट में आता है इति सुश्रुत संहितायां सूत्र स्थाने शिष्योपनिय नाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार से आपको हर एक अध्याय करते जाना है। हार्डली 20-25 मिनट्स लगेंगे आपको रोज़ चारों अध्याय पढ़ने के लिए। Okay, so I think all of you are enough motivated. You have got the entire concept of Parayan is started from today, or best thing is that started from the 21st. 21st is the best tithi, 21st July to start Parayan. So you can start it, you can practice in these 3 or 4 days. You can ask me questions and doubts about it, and start it practically from 21st July. And let's complete it totally by 28 days, बाई 30 days फ्रॉम देन। आपने उसका उत्तर तंत्र नहीं किया सुश्रुत संहिता का तो भी चलेगा। 120 अध्याय हैं, 4 अध्याय डेली, इस प्रकार से 30 दिन में आपका पारायण कंप्लीट होगा। और जब आप पारायण कंप्लीट करोगे तब मुझसे बात करना, तब मुझे बोलना क्या मज़ा आया, तब मुझे बोलना क्या अद्भुत हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो जस्ट डू इट। बाय।